اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا موسیقار بھی گزرا ہے جس نے بالی ووڈ کی موسیقی کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل دیا، جس کی دھنوں پر آج بھی کروڑوں لوگ جھومتے ہیں، مگر اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ تنہائی، ناکامی اور خاموشی کا شکار ہو گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ سپر ہٹ گانوں کا بادشاہ وقت کے ہاتھوں ہار گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آر ڈی برمن یعنی پنچم دا کی حیرت انگیز، جذباتی اور ناقابل یقین زندگی کی مکمل کہانی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کے آخری حصے میں آپ کو آر ڈی برمن کے بارے میں ایسے حقائق معلوم ہوں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہو۔ جب بھی بالی ووڈ کی موسیقی کا ذکر ہوتا ہے تو ایک نام ہمیشہ سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا ہے، اور وہ نام ہے راہل دیو برمن، جنہیں پوری دنیا آر ڈی برمن یا محبت سے پنچم دا کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے بھارتی فلمی موسیقی کو ایک نئی پہچان دی۔ ان کی دھنیں آج بھی نئی نسل کے دلوں پر راج کرتی ہیں، اور ان کے گانے وقت گزرنے کے باوجود اپنی تازگی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ آر ڈی برمن کی پیدائش 27 جون 1929 کو کلکتہ، موجودہ کولکاتہ میں ہوئی۔ ان کے والد مشہور موسیقار سچن دیو برمن تھے، جو اس دور کے سب سے کامیاب میوزک ڈائریکٹرز میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی والدہ میرا دیو برمن بھی موسیقی سے گہرا لگاؤ رکھتی تھیں اور بہترین گلوکارہ اور نغمہ نگار تھیں۔ اس طرح آر ڈی برمن کی پرورش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں صبح سے شام تک موسیقی کی محفلیں سجتی تھیں۔ گھر میں بڑے بڑے گلوکار، شاعر اور موسیقار آتے رہتے تھے۔ چھوٹے راہل کے لیے یہی ماحول ان کا پہلا موسیقی کا مدرسہ بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ صرف چند ماہ کے تھے تو رونے کی آواز بھی ایک خاص سر میں نکالتے تھے۔ ان کے والد نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بیٹے میں غیر معمولی موسیقی کی صلاحیت موجود ہے۔ بچپن میں انہیں سب پنچم کہہ کر پکارتے تھے۔ اس نام کے بارے میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ بچپن میں روتے وقت پا یعنی موسیقی کے پانچویں سر جیسی آواز نکالتے تھے، اسی لیے انہیں پنچم کہا جانے لگا۔ بچپن ہی سے انہیں مختلف ساز بجانے کا شوق تھا۔ وہ ہارمونیکا، طبلہ، پیانو اور کئی دوسرے آلات موسیقی کے ساتھ گھنٹوں وقت گزاراتے تھے۔ ان کے والد نے ان کی دلچسپی دیکھ کر انہیں باقاعدہ موسیقی کی تعلیم دلوانی شروع کی۔ آر ڈی برمن نے نہ صرف ہندوستانی کلاسیکی موسیقی سیکھی بلکہ مغربی موسیقی کو بھی بہت گہرائی سے سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں ان کی دھنوں میں ہندوستانی راگوں اور مغربی سازوں کا ایسا حسین امتزاج نظر آیا جو پہلے کم ہی سننے کو ملتا تھا۔ وہ بچپن میں اکثر اپنے والد کے ساتھ ریکارڈنگ اسٹوڈیوز جاتے تھے۔ وہاں وہ خاموشی سے بیٹھ کر موسیقاروں، گلوکاروں اور سازندوں کو کام کرتے دیکھتے۔ ہر ریکارڈنگ ان کے لیے ایک نئی کلاس ہوتی تھی۔ صرف 9 برس کی عمر میں انہوں نے ایک دھن تیار کی جسے بعد میں ان کے والد نے ایک فلم میں استعمال کیا۔ یہ لمحہ آر ڈی برمن کے لیے بہت حوصلہ افزا ثابت ہوا، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ مستقبل میں ایک بڑے موسیقار بن سکتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی موسیقی کی مشق جاری رہی۔ وہ روزانہ کئی گھنٹے ریاض کرتے، نئی دھنیں بناتے اور مختلف انداز آزمانے کی کوشش کرتے۔ یہی مسلسل محنت بعد میں ان کی کامیابی کی بنیاد بنی۔ جب خاندان ممبئی منتقل ہوا تو آر ڈی برمن کے لیے فلمی دنیا کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس وقت بالی ووڈ موسیقی کے سنہرے دور سے گزر رہا تھا، اور نوجوان راہل ہر روز کچھ نیا سیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے معاون کے طور پر بھی کام کیا۔ ریکارڈنگ کے دوران وہ سازوں کی ترتیب، گلوکاروں کی رہنمائی اور دھنوں کی تیاری میں حصہ لیتے تھے۔ اس تجربے نے انہیں عملی زندگی میں بہت مضبوط بنایا۔ اس دور میں شاید ہی کسی نے سوچا ہو کہ یہی نوجوان ایک دن بھارتی فلمی موسیقی کی تعریف بدل دے گا، لیکن آر ڈی برمن کے خواب بہت بڑے تھے، اور وہ صرف اپنے والد کے نام سے نہیں بلکہ اپنی منفرد پہچان بنانا چاہتے تھے۔ ان کی زندگی کا اصل امتحان ابھی شروع ہونا باقی تھا۔ جلد ہی انہیں اپنی پہلی فلم بطور آزاد موسیقار ملنے والی تھی، اور وہیں سے ایک ایسی شاندار موسیقی کی داستان شروع ہوئی جسے آج بھی دنیا محبت سے یاد کرتی ہے۔ یہ تھا آر ڈی برمن کی زندگی کا پہلا مرحلہ،
जहां एक बासलाहियत बच्चे ने मौसीकी से मोहब्बत करना सीखा, सख्त मेहनत की और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए खुद को तैयार किया। हिस्सा 2, फिल्मी कैरियर का आगाज़, पहली कामयाबियां और शोहरत की तरफ सफ़र। फिल्मी कैरियर का आगाज़, पहली कामयाबियां और शोहरत की तरफ सफ़र। बचपन से मौसीकी के माहौल में परवरिश पाने वाले R.D. बर्मन अब नौजवान हो चुके थे। उनके अंदर एक ही ख्वाब था, अपनी अलग पहचान बनाना। अगरचे उनके वालिद सचिन देव बर्मन पहले ही बॉलीवुड के अजीम मौसीकारों में शुमार होते थे, लेकिन R.D. बर्मन चाहते थे कि लोग उन्हें सिर्फ S.D. बर्मन के बेटे के तौर पर नहीं, बल्कि उनकी अपनी सलाहियत की वजह से याद रखें। इसी दौरान उन्होंने अपने वालिद के असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू किया। वो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में घंटों बैठते, गुलकारों की रिहर्सल सुनते, साज़ों की तरतीब बनाते और मौसीकी के हर छोटे बड़े पहलू को सीखते। यही तजर्बा बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। R.D. बर्मन को बतौर आज़ाद मूसीकार पहली फिल्म छोटे नवाब 1961 मिली। इस फिल्म के हीरो मारूफ कॉमेडियन महमूद थे, जिन्होंने R.D. बर्मन की सलाहियत पर भरोसा करते हुए उन्हें यह मौका दिया। ये उनके लिए आसान सफ़र नहीं था। इस वक्त फिल्मी दुनिया में पहले ही बड़े बड़े मौसीकार मौजूद थे और एक नए नौजवान के लिए अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन R.D. बर्मन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इस फिल्म के लिए ऐसी धुनें तैयार की जिनमें ताजगी, जिद्दत और एक अलग अंदाज था। अगरचे फिल्म बहुत बड़ी कामयाब ना बन सकी, लेकिन मौसीकी के शौकीन लोगों ने इस नए मौसीकार को नोटिस करना शुरू कर दिया। इसके बाद R.D. बर्मन मुसलसल मेहनत करते रहे। वो हर नई फिल्म के साथ कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि मौसीकी सिर्फ सरों का मजमुआ नहीं, बल्कि जज्बात को बयान करने का जरिया है। असल कामयाबी उन्हें 1966 में फिल्म तीसरी मंजिल से मिली। इस फिल्म के गाने रिलीज होते ही पूरे हिंदुस्तान में मकबूल हो गए। नौजवान नस्ल ने उनकी मौसीकी को हाथों हाथ लिया और R.D. बर्मन रातों रात सुपर स्टार मूसीकार बन गए। इस फिल्म के गानों ने साबित कर दिया कि बॉलीवुड में एक नया दौर शुरू हो चुका है। R.D. बर्मन ने मगरबी मौसीकी, रॉक एंड रोल, जाज और हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी को इस खूबसूरती से यकजा किया कि हर कोई हैरान रह गया। उनकी धुनों में नई तवानाई, रफ्तार और जिद्दत थी। यही वजह थी कि फिल्म साजों ने उन्हें अपनी फिल्मों के लिए पहली पसंद बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही बड़े अदाकार और प्रोड्यूसर्स R.D. बर्मन के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद थे। उनके गाने सिर्फ हिट नहीं होते थे, बल्कि लोगों की ज़बान पर चढ़ जाते थे। यही वो दौर था जब R.D. बर्मन ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अजीम मौसीकार के बेटे नहीं, बल्कि खुद भी एक गैर मामूली टैलेंट के मालिक है। जारी रहेगा हिस्सा 3, R.D. बर्मन का सुनहरी दौर, सुपरहिट गाने, आशा भोसले के साथ शराकत और बेमिसाल कामयाबियां। सुनहरी दौर, सुपरहिट गाने, आशा भोसले के साथ शराकत और बेमिसाल कामयाबियां। 1966 में तीसरी मंजिल की कामयाबी के बाद R.D. बर्मन के कैरियर ने ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसका हर नया संगे मील पिछले से बड़ा साबित हुआ। अब फिल्मसाज जान चुके थे कि अगर फिल्म में नई, दिलकश और यादगार मौसीकी चाहिए तो पंचम दा से बेहतर इंतखाब कोई नहीं। R.D. बर्मन सिर्फ धुनें नहीं बनाते थे, बल्कि हर गाने के लिए एक अलग दुनिया तख्लीक करते थे। वो घंटों बैठकर सोचते कि फिल्म का मंजर क्या है, किरदार किस कैफियत में है और मौसीकी इस जज्बाती लम्हे को कैसे मज़ीद ताकतवर बना सकती है। जल्द ही इनकी जोड़ी इस दौर के बड़े हिदायतकारों और अदाकारों के साथ बन गई। इनकी मौसीकी नौजवानों में बेहद मकबूल होने लगी, जबकि बड़ी उम्र के लोग भी इनकी धुनों के दीवाने थे। यही वो खूबी थी जिसने इन्हें हर नस्ल का पसंदीदा मौसीकार बना दिया। इस दौरान इन्होंने बेशुमार सुपरहिट फिल्मों के लिए मौसीकी तरतीब दी। इनके गाने सिर्फ रेडियो पर नहीं बजते थे, बल्कि शादियों, महफिलों और घरों में भी हर वक्त सुनाई देते थे। R.D. बर्मन की कामयाबी की एक बड़ी वजह इनकी तख्लीकी सोच थी। वो रोज़मर्रा की चीज़ों से भी नई आवाज़ें पैदा कर लेते थे। कभी बोतलों की आवाज़, कभी ग्लास पर चमच की टक्कर,
कभी सांस की आवाज़ और कभी हाथों की ताल को भी वो मौसीकी का हिस्सा बना देते थे। इस वक्त ये अंदाज बिल्कुल नया था और लोगों को बेहद पसंद आया। इनकी एक और बड़ी ताकत मशहूर गुलकारा आशा भोसले के साथ इनकी शानदार मौसीकी थी। आशा भोसले ने आर.डी. बर्मन की बेशुमार यादगार धुनों को अपनी आवाज़ दी। दोनों की पेशावराना हम आहंगी ने बॉलीवुड को कई लाजवाब गाने दिए जो आज भी दुनिया भर में सुने जाते हैं। वक्त के साथ ये पेशावराना ताल्लुक ज़ाती ज़िंदगी में भी बदल गया और बाद में दोनों ने शादी कर ली। अगरचे दोनों की ज़िंदगी में पहले भी कई मुश्किलात आ चुकी थीं, लेकिन इन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया। 70 और 80 की दहाई आर.डी. बर्मन के उरूज का ज़माना था। हर साल इनकी कई फिल्में रिलीज़ होती और इनके गाने चार्ट पर छा जाते। इनकी मौसीकी में रोमांस भी था, दर्द भी, खुशी भी और जोश भी। यही वजह थी कि वो हर किस्म के गाने कामयाबी से बना लेते थे। इनके साथ इस दौर के तकरीबन तमाम बड़े गुलकारों ने काम किया। वो रिकॉर्डिंग के दौरान हर छोटी तफसील पर तवज्जो देते थे। अगर एक सर भी इनकी तवक्को के मुताबिक ना होता तो वो दोबारा रिकॉर्डिंग करवाते, क्योंकि वो मेयार पर कभी समझौता नहीं करते थे। लोग इन्हें सिर्फ एक मौसीकार नहीं बल्कि एक ऐसा फनकार मानते थे जिसने भारतीय फिल्मी मौसीकी को जदीद अंदाज दिया। इनकी धुनों में हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी, मगरबी रॉक, जाज, लातीनी मौसीकी और कई दूसरे अंदाज़ों का खूबसूरत इम्तिजाज होता था। इस वक्त शायद ही किसी ने सोचा हो कि कामयाबी के इस बुलंद मकाम के बाद इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर भी आएगा जब इन्हें काम मिलना कम हो जाएगा और वो शदीद मुश्किलात का सामना करेंगे। जारी रहेगा। हिस्सा 4। ज़वान, मुश्किलात, ज़ाती ज़िंदगी के चैलेंजेस और आखिरी अय्याम। 70 की दहाई के आखिर और 80 की दहाई के आगाज़ तक आर.डी. बर्मन कामयाबी की बुलंद तरीन चोटी पर थे। उनके गाने हर तरफ गूंज रहे थे। फिल्मसाज उनके साथ काम करने के लिए बेताब रहते थे और मौसीकी की दुनिया में उनका नाम मेयार की अलामत बन चुका था। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती और जल्द ही किस्मत ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। 1980 की दहाई के वसत में बॉलीवुड की मौसीकी का अंदाज तेज़ी से बदलने लगा। नए मौसीकार सामने आ रहे थे। फिल्मसाज मुख्तलिफ तर्ज की मौसीकी आजमाना चाहते थे और मार्केट में मुकाबला पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो गया। आर.डी. बर्मन ने खुद को नए रुझानात के मुताबिक ढालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पहले जैसी कामयाबियां नहीं मिल सकी। कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हुईं और उनकी बेहतरीन धुनें भी वो मकाम हासिल ना कर सकी जिसकी वो मुस्तहिक थीं। आहिस्ता आहिस्ता कुछ प्रोड्यूसर्स ने उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने कभी उनके बगैर फिल्म बनाने का तसव्वुर भी नहीं किया था, वो अब नए मौसीकारों की तरफ बढ़ रहे थे। ये तब्दीली आर.डी. बर्मन के लिए बहुत तकलीफदेह थी। पेशावराना मुश्किलात के साथ साथ उनकी सेहत भी मुतासिर होने लगी। मुसलसल जहनी दबाव, काम की कमी और दिल की बीमारी ने उन्हें कमज़ोर कर दिया। कई बार उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो मौसीकी से अपना रिश्ता तोड़ न सके। उनकी अहलिया, मशहूर गुलकारा आशा भोसले, हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रही। अगरचे दोनों अपने अपने काम में मसरूफ़ रहते थे, लेकिन आशा भोसले ने हमेशा उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें हिम्मत न हारने का मशवरा दिया। उन तमाम मुश्किलात के बावजूद आर.डी. बर्मन का एतमाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। वो यकीन रखते थे कि एक न एक दिन लोग दोबारा उनकी मौसीकी की कदर करेंगे। वो नई धुनें बनाते रहे और बेहतर मौक़े का इंतज़ार करते रहे। फिर किस्मत ने एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाया। उन्हें फिल्म 1942 ए लो स्टोरी की मौसीकी तरतीब देने का मौका मिला। उन्होंने पूरी लगन और मोहब्बत से इस फिल्म के गाने तैयार किए। अफसोस की बात यह थी कि फिल्म की रिलीज़ से पहले ही उनकी ज़िंदगी का सफ़र अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुका था। 4 जनवरी 1994 को दिल का दौरा पड़ने के बायस आर.डी. बर्मन इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी उम्र सिर्फ 54 साल थी। उनकी वफ़ात ने भारतीय फिल्मी सनत और मौसीकी के शायकीन को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया।
دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد جب 1942 ایلو سٹوری ریلیز ہوئی تو اس کی موسیقی زبردست کامیاب ثابت ہوئی۔ لوگوں نے ایک بار پھر محسوس کیا کہ آر ڈی برمن واقعی اپنے وقت سے بہت آگے کے موسیقار تھے۔ ان کے بنائے ہوئے گانے آج بھی ہر نسل کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کی موسیقی وقت کی قید سے آزاد نظر آتی ہے۔